Rishi, when I last met you at the LSE in London, you were talking about writing this book. Could you tell us a bit more about how you came to think of writing a book and what it was like becoming an author? Contrary to the common perception that a star's son or a daughter, it's very easy for them to, enter films. Rachel, there is no nepotism in Indian films. I must say that you are as good or bad as your last film. I wanted to give a different meaning to the definition of being a star's son, and to the fact that I have also struggled, but in a altogether different sense. Struggle doesn't mean that I've slept on the platforms or I've had to go hungry many days. My kind of struggle was different. I got a great launch. After the launch was then what? I had some bad films at release, and that didn't do well, and I was again back to square one. It was then that I had to come back into the again to the circuit, because those days were the days of the action period. मार पिटाई की पिक्चरें बनती थी उन दिनों में. जब मेरी एंट्री हुई फिल्मों में, तो मार धाड़ की पूरा ट्रेंड बदल गया था. रोमांटिक फिल्म और म्यूजिकल फिल्म लोग देखते नहीं थे. मेरे सामने तूफान खड़े थे, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न, विनोद खन्ना वगैरह वगैरह. अब उनके सामने क्या मुकाबला मेरा. बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किताब लिखनी जरूरी थी. क्यों? क्योंकि इसमें मैं खुल के आपसे कहता हूं कि कैसे मैंने सरवाइव किया. मैंने सिर्फ सरवाइव किया है अपनी शिद्दत से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपने टैलेंट से, और आप लोगों के प्यार से. सबसे ज्यादा आप लोगों के प्यार होकर. So it was very essential, Rachel, to roadmap my journey into the films. It had to be documented. कह रहा हूं इसलिए क्योंकि दादाजी श्री पृथ्वीराज कपूर साहब, मेरे पिता राज कपूर साहब, शमी कपूर जी, शशि कपूर साहब तो है, वो सब चले गए, उन्होंने कोई किताब लिखी नहीं. हाँ, उनके बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन में नहीं है. मैंने ये किताब उनको मद्देनजर रखते हुए ली है, और आपने बारे में बहुत खुलासा किया है, और बड़े ऑनेस्टी से खुलासा किया है. I think that's one of the things that's very striking in the book. I mean, you've called it Kula Kula, and I think it's really that openness and frankness, and the reading of it, it's like having a conversation with you. It's got a lovely, readable style where you feel actually that you're in the same room as the author while you're reading it. But I'd like to start off really by talking a bit more about your family. I mean, what a family. And your grandfather, I mean, for me, excuse me, the handsomest of all the Kapoors. I mean, the great actor, the star of the first talkie. I mean, what was he like as a person? मैं अपना एक हादसा किस्सा सुनाता हूँ. I have an anecdote to share with the audience. I worked in a film called मेरा नाम जोकर, और इस फिल्म के लिए मुझे नेशनल पुरस्कार मिला था. तो उस वक्त दादाजी तो थे, पिताजी भी थे. मुझे जो नेशनल पुरस्कार मिला, मैं 16 साल का था, तो मैं वो पुरस्कार लेके मैं अपने घर गया. तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप वो पुरस्कार लेके अपने दादाजी के पास जाओ और उनको दिखाओ. मैं पहुंचा वहां, दादाजी क्या पुरस्कार दिखाया. उन्होंने माथे पे लगाया, उसे चूमा, और उनके आंखों में आंसू आ गए. मुझे घबराहट हुई कि मेरे से कोई गलत काम हो गया, कि वो रोने लगे या क्या हुआ. लेकिन जो बात उस वक्त उन्होंने कही मुझसे, आज मुझे उस बात की तमीज और समझ आती है. उन्होंने ये कहा था कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया तुझ पर. यानी कि मैं एक्टर बन गया, ये दूसरी पीढ़ी में एक बात चली गई कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया. मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने जाके कहा तो मेरे पिताजी बड़े इमोशनल हो गए. लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उनका आशीर्वाद मिला.
Did you understand? Of course I understood. More as a Montana. तालियां जी, तालियां इसके लिए। दोनों करेंगे, दोनों। And you, I mean, your mother must have been delighted when this book came out. I mean, I'm sure you received many blessings from her. Well, surely, of course. It's a very honest, candid, forthright thoughts of mine which have been put across. मैंने अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों का एहसास दिलाया किताब के जरिए। लोग ऐसे दिखते हैं किताबें अपना बड़प्पन, मैंने कोई बड़प्पन नहीं इसमें रखा है। मैंने सब बताया कि गलत काम जो मैंने सब किया है, मैंने खुलासा आपके सामने किया है। And I think it was very important for me to share it with my fans, my friends, that what my journey of last 44 years in the film industry has been. I mean, your Twitter, for which you're very famous, which provides me with great entertainment every day, and many others here, I'm sure. I mean, you say you're being the son of a famous father, but what a father. I mean, we wouldn't have the Hindi film industry today if it hadn't been for your father. The song sequence really is largely defined by the way he shot songs. I mean, it must have all been so normal for you, but can you still feel the wonder of the work your father did in those days? Yes, Raj Kapoor has made many good film with a lot of good music, with a lot of messages, which you don't perhaps get in to see this time. Very rarely we see those kind of films. क्योंकि ऐसे किस्म के फिल्म मेकर रहे नहीं, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लोग ऐसे फिल्मों भी बनाते नहीं हैं. So it was a matter of time how how the trends change, the filmmakers change as well. I mean, really quite extraordinary work. And I know when we were at the LSE, we talked about when you were a very small child even, you appeared in a couple of films. But you appeared in one very famous song sequence. Yes. And we love that. And in fact, I don't know if the cameras can come up on this, but today I think I've seen the cutest thing I've seen this year or for a long time. Can the cameras close in on this picture? Beautiful. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. मैं 2 साल का था तो मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई, हम तीनों को एक शॉट देना था श्री 420 फिल्म के लिए, और वो शॉट सिर्फ गाने की एक लाइन थी और बस सिर्फ चलना था और कुछ नहीं करना नहीं था, बट लेकिन चलना था बारिश में. हुआ ये कि बारिश जब रिहर्सल में होती थी तो मेरी आंख में पानी चला जाता था, तो मैं रोने लगता था, तो शॉट कट जाता था. तो ये करे क्या, मैं रो कि मैं शॉट नहीं दूंगा. तो मैंने उस वक्त भी स्टार टेंट्रम्स फेंके, मैंने बड़े तकलीफ पहुंचाए जब मैं 2 साल का था. तो हुआ ये कि फिर नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने एक चॉकलेट मेरे सामने दिखाया और कहा कि अगर तुम ये शॉट दोगे तो मैं तुम्हें ये चॉकलेट दूंगी. तो हुआ क्या, नेक्स्ट शॉट आंखें ऐसी चुनिया हुई थी, ऐसे खुल गई थी और ऐसा शॉट दिया कि पानी तो क्या, आप कुछ भी लाया थे, मैंने शॉट देना था. तो मैंने रिश्वत तो उस वक्त लेनी शुरू कर दी थी. So that was the first time I said I threw a star tantrum when I had to do this. And Mere Naam Joker, I mean, a huge film to begin in, a film which at the time didn't get the recognition it was due, but now is regarded as something of a classic. Tell us a bit about your father casting you in that and what it was like working for the first time with him. ऐसा है कि जब मेरा नाम जोकर बन रही थी तो उन्होंने मेरी माता जी से पूछा कि मैं ऋषि को मेरा नाम जोकर में ले सकता हूँ, जो कि मेरे बचपन का पार्ट करे. हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, खाना खा रहे थे, पापा, मम्मी और मैं. तो जैसे पापा ने मम्मी से कहा तो मेरे कान बिल्कुल खड़े हो गए, लेकिन मैंने इसका कोई एहसास उनको नहीं दिलाया कि मैंने इसको बड़े अच्छे थे. मैं बड़े कॉन्फिडेंटली आराम से खाना खा रहा था. मैं ये 14 या 15 साल का था. तो माता जी ने कहा कि
अगर स्कूल में ये मुझे उनकी मेरी पढ़ाई पे डिस्टर्ब ना करे और स्कूल से बहुत देर तक बाहर ना रहे, तो जैसे आप समझो कि ये उन्होंने तय कर लिया कि मैं अब लेने वाला हूँ ऋषि को मेरा नाम जोकर में राज कपूर का बचपना करना। तो जब मैंने ये सब सुना, मैंने आराम से एक्सक्यूज मी कहा, हाथ धो के मैं अपने बेडरूम में गया। और बेडरूम में क्या किया मैंने कि जो मेरा स्टडी का टेबल था, उस स्टडी के टेबल पे मैंने दराज खोला, एक वहां से मैंने किताब निकाली, धनाधन वहां अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो ये तो मेरी तैयारी उस वक्त थी। शशि कपूर साहब मुझे किस्सा सुनाते थे कि जब मैं बहुत ही बदमाश बच्चा था, बहुत नॉटी था, बहुत हरकतें करता था, तो होता ये था कि जब माँ से थप्पड़ खाता था मैं, तो मैं रोने लगता था। लेकिन जब मैं रोता था तो मैं जाके शीशे में देखता था मैं कैसे लगता हूं मैं रोते हुए। तो ये सब मेरे साथ हुआ है, जो कि इस किताब में भी है। But 1973 was the film for me. I mean, Bobby. Can we have some applause for Bobby, please? Come on. I mean, a film which really, if we hadn't had Bobby, we would never have had the Bollywood of the 1990s. This film was way ahead of its time. The youngsters, the glamour, Goa, the motorbike, the clothes. I mean, this must have been just so exciting for a teenager to do this film with a gorgeous dimple. बॉबी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि जो किरदार थे दोनों वो उसी उम्र के थे। मैं 20 साल का था, डिम्पल शायद 15 साल की थी, तो जो कास्टिंग थी बहुत करेक्ट थी पिक्चर की। क्योंकि उससे पहले जो ऐसे फिल्मों में करते थे वो सब 40 साल के हीरो करते थे। सो एक रिफ्रेशिंग मोमेंट ये हुआ कि सही ऑडियंस के लिए सही लोग आए। फिर म्यूजिक बहुत अच्छा था, रोमांस बहुत अच्छी थी, पिक्चर बहुत अच्छी गई। लेकिन उसके बाद बॉबी के बाद मेरा दिमाग जो ना पूरा घूम गया था। 20 साल का लड़का, इतनी शोहरत, इतना नाम, 20 साल आज के बच्चे भी 20-21 साल की उम्र में ऐसी उनको सिचुएशन नहीं मिलती है। तो आप इमेजिन कीजिए 1973 में मेरे क्या हालात होंगे। तो बॉबी ने मुझे मैं उड़ रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे पर जो है बहुत जल्दी काट दिए और मैं जाके गिर बैठा, और फिर उसके बाद जिंदगी की मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। Thank you. But I mean, Bobby for me, among many things, are the songs. What music, what songs? Which for you was the song that you most enjoyed doing? Okay, I must tell you this also. I have an anecdote. बॉबी जिंदगी में मैंने पहला गाना जो गाया है वो था मैं शायर तो नहीं। हाँ जी, पहला गाना। तो हुआ यूं कि बहुत एक्साइटमेंट थी कि गाना गाने वालों पिक्चर में। जाहिर है कि पहली बार आप गाना गाओगे तो आपको एक्साइटमेंट तो होगी। तो सेट पे गया तो मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछा कि कोरियोग्राफर यानी कि डांस मास्टर कौन है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं आया, ठीक आता होगा। उसके बाद राज साहब को बुलाया गया, सेट पे भी शॉट तैयार है आपने के लिए। तो जब राज साहब सेट पे आए तो उस वक्त तो मुझे थोड़ी एंग्जाइटी जो है मेरी बढ़ गई। तो मैंने उनसे पूछा, मैं साहब ही बुलाता था अपने पापा को, साहब कि वो डांस मास्टर या कोरियोग्राफर तो आया नहीं है। तो उन्होंने उससे कि तुम्हें डांस मास्टर या कोरियोग्राफर की क्या जरूरत है, खड़े हो उधर और गाना करो। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में गाना ही नहीं गाया, मैं ऐसे खड़े होकर कैसे करूंगा, खड़े रहो परफॉर्म करो। लेकिन ये जो भी बात आपसे कहूंगा ये मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी सीख थी। इतनी बड़ी उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं कोई डांस मास्टर लाता या कोई कोरियोग्राफर लाता तो वो जो आपको दिखाता करने के लिए वो तो कर चुके हैं सब हीरो जो आजकल मार्केट में, अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, शशि कपूर है, संजय खान है, सब है। तो लोग कहते हैं कि भैया तुम तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की कॉपी कर रहे हो, तो तुमको अपनी छवि खुद बनानी है, खड़े रहो और गाना खुद गाओ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक नसीहत थी जो पापा ने मेरे को दी थी। You understand?
Okay. But I think also in that film we remember your outfits, the leather jacket, the blue bush safari suit, the outfits, and I have to say I've had one big disappointment today, that What's you that? didn't wear a sweater. Well, that came much later on in life. But you know, those kind of clothes were the fashion those days, Rachel. And you obviously reflected those times where you were in. It was very trendy to have worn that time. You know, it's very trendy. उस वक्त का fashion ही वो था. जो bell bottom इतने फैले हुए थे. So I have no regrets. People like that, and we moved on. But after Bobby, I mean, you talk about this very sensitively in the book, that after such a high there had to be a low. True. Would you like to say a little bit about I told him about it. I went under the low period, and I had to fight, you know, because the trends had changed. And people were only seeing action-oriented films, as I said earlier. So I had to really make my mark. मैंने वक्त और हालात के साथ मैंने बहुत मुकाबले किए. मुझे वो समंदर में फेंका गया जहाँ के भाव बहुत जबरदस्त थे समंदर के. और मुझे वो तैरने के लिए वो जो करंट थे, जैसे मैंने आपको एक्शन एक्टरों के बारे में कहा, वो बहुत बहुत मुश्किल का काम था. लेकिन ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया, और सबसे ज्यादा आप लोगों ने मेरा साथ दिया. But I mean, it's also, you talk about Curse as not being a success, but now, I mean, Om Shanti Om, Monty in his silver suit, I mean, for everybody, this is a classic moment of film. It so happened, no, Curse was a successful film, but it had to be even more, you know. What had happened that, हुआ ये था कि जब कर्ज लगी, कर्ज में म्यूजिक बहुत अच्छा था, कहानी अच्छी थी, लेकिन जैसे कि आजकल हो रहा है, उन दिनों में एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी पिक्चर आ रही थी, जिस फिल्म का नाम था कुर्बानी. उसमें फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, फॉरेन शूटिंग, एक्शन फिल्म, लॉट ऑफ सेक्स, लॉट ऑफ ग्रेट म्यूजिक ऑल्सो इन दैट फिल्म, और वो मासेस की पिक्चर थी. तो वो जब एक हफ्ते बाद पिक्चर लगी तो कर्ज पे बहुत हावी बढ़ गई. तो इसलिए कर्ज को जरा मुश्किल उस वक्त हुई थी. लेकिन आज के दौर में हम कितना उस फिल्म के बारे में सुनते हैं, और कर्ज इज टुडे अ कल्ट फिल्म ऑफ माइंड. लोगों को पसंद आती है, लोग पसंद करते हैं, आज के बच्चे भी उन्हें पसंद करते हैं, जिसकी मुझे बड़ी खुशी होती है. I mean, and a wonderful film, but you become really at this point the romantic hero of the 70s, don't you? And when Amitabh comes along, you felt that he was in any way encroaching in your territory, or you felt you always had separate areas? No, we had separated areas. He was more of an action hero, the angry young man, and I was immediately opposite. I was a musical, romantic hero. So we didn't trespass, we didn't tread on each other's toes. But the fact remains that he's one of the finest actors we have in this country, and that he was the biggest star at that time. There's no denying that. And interestingly, I mean, if I skip forward rather than doing it chronologically, that you've both very much found new roles today. I mean, fascinating, different roles. I think people just thought, oh, Rishi Kapoor, he's a Kapoor, he's got the looks, he can do the dancing, the music, he's fine. But what's been so interesting in the films that you've done in more recent years is you've played characters that, everybody's, who is Ralph Lalla in Rishi Kapoor's life? ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है. ये पूछती है मुझे कि मेरे तमाम करियर में, जो कि अभी आज 44 साल हो गए, उसमें फर्क क्या है. तो मैं आपको बताता हूँ. तो फर्स्ट 25 years of my career, 25 साल मैंने लगातार काम किया. मैं तो सिर्फ गाने गाए, जर्सियां पहन के हीरोइन के साथ स्विट्जरलैंड में सिर्फ गाना ही गा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था. लव स्टोरियां बनती थी, म्यूजिकल फिल्म बनती थी. लेकिन ये जो मेरा सेकंड इनिंग्स है, ये जो दौर है मेरा, मुझे पहली बार एक्टिंग की चांसेस मिले जा रहे हैं. मुझे रोल्स तो अब मिल रहे हैं मुझे आके, तो मैं आपके सामने भांत तरीके से पेश आता हूं. कभी नेगेटिव हो जाता हूं, कभी पॉजिटिव हो जाता हूं, कभी 90 साल का हो जाता हूं, तो कभी, तो ये तो मैं समझता हूं कि मुझे मालिक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं उस दौर में हूं जिस दौर में मेरा बेटा भी काम कर रहा है. ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि बाप बेटा उसी दौर में काम कर रहे हैं.
मैं अब कैरेक्टर एक्टर हूँ, लेकिन आई एम एंजॉयिंग दिस सेकंड फेज ऑफ माइंड, बिकॉज अभी तो मुझे कैरेक्टर्स मिलने शुरू, मैं एक्टिंग तो अब मैंने शुरू की है, तो जो पहले 25 साल था वो सब आपका बेवकूफ बना रहा था। But who could have believed though that you could play a middle class teacher in Delhi? You know, Yash Chopra called me in Moscow, and Adi took the phone. He said, "Dad wants to speak to you." I thought he might be speaking to me about something. What Ranbir had just worked in that rocket salesman, so perhaps he was talking. And he went on and on praising me. I'm thinking that he's praising Ranbir in the film Rocket Singh. लेकिन हुआ ये कि he was telling me that I have always made glamorous films with you. I never knew that you could look like a common man, a common middle class man. I said, you never tried me as an actor. आपने सिर्फ मुझे वही रोल दिए, स्वेटर पहनो, रोमांस करो, कभी नीतू तो कभी श्रीदेवी तो कभी सोनम, कभी एक्टिंग का चांस है तो मैं करता ना। तो ये यश चोपड़ा साहब के साथ मेरी ये वार्तालाप हो चुकी। Are you gargling? What are you doing? But these films also, I mean, when we saw you in Agnipath, first of all, we're really shocked. But then when you do the Qawwali, we're like, oh yes, this is how you do a Qawwali. Why are you so good at doing Qawwalis? And we love to get him to do one now. No, I'm not good at doing Qawwalis. I only copy तक ऐसे डांस मास्टर जो होते हैं उसको मैं कॉपी करके आपके सामने पेश करता हूँ, इससे निकल जाता हूँ। मेरी कव्वाली का मुझे ऐसा कोई इल्म भी नहीं है। लेकिन जब आपने ये अग्निपथ की बात की, अग्निपथ, मैंने मुझे जब पहले कहानी सुनाई तो मैं तो भक्का भक्का रह गया। मैंने कहा पागल हो यार, मुझे ले रहे हो इसमें, तो मुझे ये पिंप का रोल दे रहे हो, एक विलन का रोल दे रहे हो, ऐसे 2 शो नहीं चली ये पिक्चर, पागल। मैं रेडी बरस गया, बहुत नाराज हो गया करण मल्होत्रा और करण जौहर पर। तूने कहा नहीं, हाँ हमने सोचा है ना आप ये करेंगे पिक्चर, मैंने वहीं इनकार कर दिया, मैंने कहा पिक्चर नहीं करूंगा। फिर उन्हें 15-20 दिन लगे, मुझे लगातार मेरे पीछे लगे रहे कि आप सोच लो, ये सीन देखो, मैं आपके लिया कराऊं, अच्छा ये सीन पढ़ते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरे बीच में ये एक इनसिक्योरिटी थी, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये रोल कर पाऊंगा। मैं ये जहनी तौर पे सोचता रहा कि अगर मैं ये रोल करूं और पिक्चर कल फ्लॉप हो जाए तो उसका पूरा ब्लेम मेरे पे आएगा, बिकॉज मेरी जो छवि थी, एक इमेज थी, एक रोमांटिक हीरो की थी, एक म्यूजिकल हीरो थी, एक सॉफ्ट इमेज की थी, और वो चाह रहे थे कि मैं ऐसा एक नेगेटिव रोल करूं। तो खैर उन्होंने कहा कि हम एक लुक टेस्ट करते हैं। लुक टेस्ट मतलब देखेंगे कितना आपको, तो मुझे भी लगा कि अगर हाँ करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने सिर्फ किया कि विग पहनी, 4-5 दिन की दाढ़ी मैंने शेव नहीं की और काजल मैंने लगा दिया। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद ये फिल्म कर सकूंगा। तो मैंने वहां कहा कि हाँ जी मैं पिक्चर करूंगा। फिल्म उसके बाद रिलीज हुई, बहुत सफलता पिक्चर को मिली, मेरी भी तारीफ हुई पिक्चर में। लेकिन मैं यह आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सेहरा जो इस फिल्म का है, ये टोटल करण जौहर और करण मल्होत्रा का ही है। उन्हें ही ये सब पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर ही वो आदमी है वो ये जो ऐसा रोल कर पाएगा। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं थी करने की। उन्होंने ये तवज्जो और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तब जाके मैंने ये फिल्म की। That's how it happened. But when you talk about selecting roles for films, I mean, one of my all-time favourite films is Amar Akbar Anthony. How on earth were you told the story? How did you select the film from Manmohan ji? Okay, I'll have to. ये एक्चुअली मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं बीकानेर में शूटिंग कर रहा था सन 1974 में, लैला मजनू की। 74 या 75 की बात है ये। उन दिनों में मोबाइल फोन तो बहुत दूर, कभी सोचा भी नहीं किसी के पास, बट ट्रंक कॉल में नहीं लगते थे।
अर्जेंट ऑर्डिनरी तो भूल जाओ, लाइटनिंग कॉल में नहीं लगते थे उन दिनों में। तो मैं एक दिन पैकअप के बाद, शूटिंग के खत्म होने के बाद, मैं बिलियर्ड खेल रहा था अपने सहकलाकारों के साथ, तो भागता हुआ एक वो वेटर आया, कहने को कैसे ऋषि कपूर का, ऋषि कपूर साहब आपका लाइटनिंग कॉल आया बॉम्बे से। तो मैं घबरा गया। उन दिनों में कोई कहता कि लाइटनिंग कॉल आया तो घबराने की कुछ बात थी, किसने मुझे लाइटनिंग कॉल किया। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि मनमोहन देसाई मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मेरा सेक्रेटरी भी वहां है। अच्छा, थोड़ा इससे पहले ये बैक स्टोरी जानना जरूरी है कि मनमोहन देसाई पता नहीं किस तरह के डायरेक्टर थे। वो थे कि 3 आदमी बिस्तर पे लेटे हैं और वो तीनों अपना खून दे रहे एक माँ पे। वो कुछ भी कर सकते थे, वो ग्रेविटी को डिफाई कर सकते थे, वो घोड़े चला सकते थे, स्काई के कुछ भी कर सकते थे। तो मेरे माइंड में ये मनमोहन देसाई के बारे में एक विचार थी। उन दोनों में वो बना रहे थे पिक्चर धर्मवीर, उसमें उन्होंने धर्मेंद्र को भी वो स्कर्ट में पहना दिया था। तो ये सब बातें मेरे माइंड में है कि मनमोहन देसाई ने स्कर्ट बनाई है धर्मेंद्र को धर्मवीर में, और पता नहीं क्या 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 उठ पटांग चीजें करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन पे बात करना शुरू की, और ये लाइटनिंग कॉल है जो बहुत तकलीफ से मुंबई बीकानेर में कनेक्ट होती है। तो हमें चिल्ला रहा, हेलो हेलो, वहां से ऋषि कपूर, मैं मनमोहन देसाई, हाँ जी सर, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक, हाँ जी, कहिए सर। अच्छा भाई, हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा जी, सर थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, हाँ जी, मैं पिक्चर एक बना रहा हूं, अमर अकबर एंथनी, और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें अकबर का रोल करो। कट इधर, अकबर का रोल? हेलो, अकबर का रोल? हाँ। तो मैंने कहा, अरे भाई, मैं अकबर का रोल कैसे कर सकता हूं? बोलते क्यों? मैंने कहा, वो तो मेरे दादा ने किया मुगल आजम में। अब मनमोहन देसाई उधर, ये उसको समझ नहीं आ रही है, ये पिया हुआ आदमी है या क्या है, ये उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं, ये पिक्चर अमर अकबर एंथनी बना रहा है, जिसमें अमर पुराने जमाने में जो बांसुरी बजाते थे ना, कहानी उसकी होगी, अकबर होगा मुगल आजम का, और एंथनी होगा वो क्लियोपैट्रा एंथनी का। मनमोहन देसाई तो कुछ भी बना सकता था ना। तो मैं बोल रहा हूँ, हेलो हेलो ऑपरेटर, हेलो, वहां से वो भी चिल्ला रहा है, ऑपरेटर, अरे पिक्चर अनाउंस करनी है मैंने, तुम्हारी परमिशन है मुझे? हेलो, मैं आ रहा हूँ 2-4 दिन में, तब बात करूंगा, लेकिन मैं जो रोल मेरे दादा ने किया वो मैं नहीं कर सकता। वो भी परेशान। तो ऐसे तो मुझे पिक्चर ऑफर हुई थी। देखिए, ये ऐसी बातें, ऐसी यादें, ऐसे एक जो हमारी जर्नी है, ये सब मेरी किताबों में है, और ये बहुत अच्छे हादसे तो नहीं कह सकता हूँ, किस्से हैं, कुछ हादसे भी हैं जो हर किस्म के आपको गुदगुदाएंगे, कभी आपको शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए। तो मेरा जो एक मेरी जर्नी रही है, बहुत फ्रूटफुल रही है। And you have some very personal moments in the book. I mean, talking about your relationship with Neetu, I think, is one of the extraordinary parts of the book. I mean, did it feel strange to talk so frankly about your wife? नीतू और मैंने कुछ 13-14 पिक्चरें की हैं। 11 हमने की थी शादी से पहले, और फिर शादी के बाद में 2-3 किए। मैं नीतू के साथ हम 2-2 शिफ्ट करते थे साथ में, तो प्यार तो होना ही था। हमारी शादी हो गई, लेकिन मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। नीतू ने बहुत बेहतरीन बीवी मिली, बहुत बेहतरीन माँ मिली मेरे बच्चों को। नहीं तो मेरे जैसे आदमी का तो कोई एतबार ही नहीं था। क्या बचपन में बच्चे छोटे थे तो हम दिन भर काम करते थे, तो बच्चों की परवरिश, बच्चों को जो भी आज उनकी वैल्यू सब माँ से मिली, उनके माँ ने उनको उनका देखभाल किया। हम तो काम ही करते रहते थे बाहर, और ये हमने तय कर दिया था पहले कि एक ऐसा कोई घर में होगा जो ब्रेड विनर होगा, और एक ऐसा आदमी होगा जो होम मेकर होगा। तो होम मेकर वो बन गई, ब्रेड विनर मैं बन गया। मालिक की दुआ से एवरीथिंग इज सेट। परसों हमारी 37वीं, 37 को 37 कहते हैं ना, एनिवर्सरी है।
ups and downs. I remember when you were shooting the couple in Jab Tak Hai Jaan. I don't think you were speaking at the time, were you? Oh, ये तो बोलना ही बोलिए। हमने एक फिल्म देखी है झूठा कहीं का, किसी ने देखी है या? उसमें गाना था जीवन के हर मोड़ पर। वो गाने के दौरान हम दोनों का झगड़ा हो गया। पूरे 4 दिन जो लगे गाने को पिक्चराइज करने में, हमने एक बार एक दूसरे को ना विश किया ना हमने बात की, और हमने ऐसे गाना किया जैसे हम इतने टोटली लव है, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि हम कहीं बुरे एक्टर तो नहीं थे। तो झगड़े वगड़े तो लगे रहते हैं। जब तक ये जान में हमारा एक दिन का काम था। यश चोपड़ा जी की वो मेरे साथ आखिरी पिक्चर थी, वो उनकी भी आखिरी पिक्चर थी। तो मैंने उनके लिए ही जाके एक दिन का गेस्ट अपीयरेंस किया। नहीं तो अक्सर मैं ये करता नहीं हूँ। तो नीतू मैं दोनों लंदन गए हुए थे। वो दौरान भी हम दोनों बात नहीं कर रहे थे, और ऐसा नसीहत दे रहे थे कटरीना कैफ को और शाहरुख खान को, जैसे हमारा टोटली लव है यार, तुम हमसे नसीहत लो। लेकिन क्या जानते सर, हम दोनों बात भी नहीं कर रहे हैं। But it's wonderful that you give her chance to speak in the book. Whose decision was that? Decision to what? To have me to write afterward in the book. Did the publisher try and talk to you? I think so. No, I think it's the co-author of mine, Meena. Yeah, she wanted the foreword is written by Ranbir. I think the afterword is written by Neetu. Yeah. Well, I presume it's the publisher and the co-author of mine. They asked you. That wasn't your decision. No. Oh, okay. One thing that's fascinating with Ranbir is that you talk about him with great affection, but sometimes with bewilderment. You know, maybe a bit about the kind of cinema he works in. It's not a kind of cinema that you feel familiar with. And yet, he's done some wonderful roles, but this choosing of scripts, you don't talk to him about them. See, it's like this. My father never interfered in my career. My grandfather never interfered in my father's career. So I have no reason to interfere in my son's career. क्योंकि अगर मैं उनकी पिक्चरें चुनता कि जो पिक्चर करनी है, जो पिक्चर नहीं करनी है, तो उसका परिणाम कुछ और ही होता। रणबीर ने अपने वक्त में हर बार एक हट के पिक्चरें कही। जैसे जब वो पिक्चरों में जब जा ही रहा था, तो उसने अपनी माँ से कहा था कि मैं पिक्चर में काम करने जा रहा हूं, लेकिन मैं कदापि वो रोल नहीं करना चाहता जो टेढ़ी टोपी हो, बास्केटबॉल हाथ में हो, स्केटबोर्ड इधर हो, 40 डांसर पीछे हो। मैं वो फिल्म करूंगा जो मेरी उम्र के लिहाज से पे बनते हैं। मैं ऐसे कैरेक्टर्स करना चाहता हूं। ये उसने अपनी मां से कहा था। लेकिन हुआ ये कि रणबीर ने जाके वो रिस्क लिया और वो एक पिक्चर करता है एक साथ में, जो कि एक्चुअली वो कमर्शियल फॉर्मेट की पिक्चरें नहीं है। मसलन रॉकेट सिंह, वेकअप सिड, बर्फी, रॉकस्टार, ये सब फिल्में जो है वो हटके फिल्में थी। वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क भी था। लोग ये नहीं जानते, क्योंकि अगर वो पिक्चर फ्लॉप हो जाती तो ही वुड हैव बीन विदाउट वर्क एट ऑल। बीच में देखो जी, हर एक्टर का उतार चढ़ाव तो होता है। किसी भी एक्टर का दुनिया भर में कोई 100% रिजल्ट नहीं है। हर पिक्चरें नहीं चलेंगी, कभी चलेंगी भी। 2-3 पिक्चरें रणबीर की नहीं चली तो सबने कहा है कि वो बकवास। मेरा ये मानना है कि एक्टर बनता है सिर्फ आपके प्यार की वजह से, और रणबीर ने वही कोशिश की है आपके प्यार और आपके आशीर्वाद को जीतने के लिए, एक हटके टाइप की पिक्चरें बनाने की, ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें। ऐसा ना हो कि वही 40 डांसर पता नहीं कहां से रोड पे आकर डांस करते हैं। वो फिल्मों से उसने अपने आप को दूर रखा है। तो आई थिंक इट इज वेरी करेजियस ऑन पार्ट ऑफ रणबीर। ये नहीं कि मेरा बेटा इसलिए कह रहा हूं, ये सब वो अपनी उसकी डिसीजन होती है। अगर मैंने डिसीजन ली होती तो मैंने इसको कभी भी किसी ने इस पिक्चर में काम नहीं करना देना होता। लोग कहते थे ही इज कमिटिंग सुसाइड। अरे गूंगा बना हुआ है, बहरा बना हुआ है, पिक्चर कौन देखेगा? और बनी क्या? बर्फी। बर्फी वाज अ ह्यूज सक्सेसफुल फिल्म। मुझे बहुत लोग कहते थे अपने बेटे को समझाओ, क्या कर रहा है ये, ऐसी पिक्चर थोड़ी करनी चाहिए, यू हैव टू बी हीरो, हीरोइक फिल्म करो। मैं भी क्या बोलूं उसको, मैं तो ना माँ उसको कुछ बोल सकती ना मैं बोल सकती हूँ। इट इज हिज करियर, इट इज हिज डिसीजन, बट हिज डिसीजंस डिड पे ऑफ। उसने हटके फिल्में की और वो भी चली।
you feel it's changed a huge amount, of course, since your time, but you keep some of your friendships alive from the old days? Yes, I'm very friendly with my colleagues and filmmakers. We're like one family. हम बोलते हैं ना कि थाली के चट्टे बट्टे, कभी खुशी कभी गम जो भी है. और ट्रेंड्स तो बदले गए हैं बहुत से. टेक्नोलॉजिकली तो बहुत ही ट्रेंड बदला है. आजकल फिल्म ही नहीं है. हम अपने आप को फिल्म एक्टर कहते हैं, लेकिन फिल्म है ही नहीं तो फिल्म एक्टर कैसे हो गए? अभी तो हम डिजिटल एक्टर हो गए. हर चीज डिजिटल है. जितने रीटेक करना है रीटेक करो, बिकॉज फिल्म तो है ही नहीं. तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है और बेटर प्ले भी. लेकिन मैं समझता हूँ कुछ कुछ जगह कंटेंट जो कहानियां होती है वो अब जाके ये जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस जो पसंद कर रही है ऐसी पिक्चर जैसे कि ये पिंक हुई या पीकू हुई या हमारी कपूर एंड सन्स हुई, नीरजा हुई, या वो जितनी पिक्चर है ये एक हटके ऑडियंस की है जो आम रिक्शे वालों के लिए नहीं है. लेकिन जैसे मार्केट में हर किस्म का कपड़ा मिलता है, कॉटन मिलता है, सिल्क मिलता है, खादी मिलता है, वैसे हमारी फिल्म भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होंगी. पुराने जमाने में भी फिल्में माइथोलॉजिकल बनती थी, एक्शन बनती थी, सोशल बनती थी, रीमेक्स बनती थी, रोमांटिक बनती थी, स्टंट फिल्में बनती थी. तो जो जिसको देखना उसका वो क्लाइंट उसका था. तो अभी भी हम एक नॉर्मल गुड सिनेमा बनाएंगे और एक दूसरी हल्की की दोनों किस्म की ऑडियंस, जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है और वो फ्रंट बेंचर की ऑडियंस है, वो भी पिक्चर देखेंगे. तो ये आज की सूरत हाल है फिल्मों का. Which is your favourite of all your films? Rachel, I have 5 fingers. Which do I say is the best finger of mine? मैंने कुछ अच्छी पिक्चरें की है, ज्यादा बकवास पिक्चरें की है और बहुत बहुत बकवास पिक्चरें भी की है. So it's very difficult to answer that, but I'm very happy to say that I've worked with most of the filmmakers who really count. सब ऐसे निर्देशक हैं, ऐसे सह कलाकार हैं मेरे, जो मैं हर मंच में कहता हूँ कि उनका साथ मेरी फिल्मों में नई लड़कियों का या कि उनका साथ म्यूजिक डायरेक्टर का साथ मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान है. मैं शायद वो नहीं होता अगर वो नहीं होते पिक्चरों में. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ हर मंच पे कि आपने मेरा साथ दिया तो आज तक मैं इतना दूर आया. But you've taken on so many challenges in recent years. Where do you want to push yourself now? What's your next challenge? I'm looking for it. After the release of Kapoor and Sons, मैंने कोई भी पिक्चर एक्सेप्ट नहीं की. मैंने तो अपना दुश्मन खुद खड़ा कर दिया. मैंने कहा कि मैंने ऐसा रोल करके, अब हर बार थोड़ी आपको ऐसे रोल मिलेंगे, हर बार थोड़ी आपको ऐसा इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा. हम सह कलाकार हैं, हम अभी लीडिंग स्टार्स नहीं है. तो ऐसा कभी कभी होता है कि ऐसा आपको ऐसा किरदार मिले, रोल मिले जो आपको बहुत खुशी होती है करने की. मैंने कपूर सन्स में पिक्चर मुझे 5.5 घंटे लगते थे रोजाना मेकअप करने के लिए और 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट लगते थे निकालने में. तो बहुत तकलीफ की बात थी, लेकिन मैं उसे एंजॉय करता था. मेरे में धीरज बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब मैं शीशे के सामने अपने आप को महसूस करता था तो मुझे मजा आता था कि जब वो मेरा मेकअप बनते जाए. तो मुझे शशि कपूर की वही बात याद आती थी कि मैं जब मम्मी थप्पड़ मारती थी तो मैं जाके मिरर में अपनी शक्ल देखता था रोते हुए. आज मैं उसी चीज को मैंने रिप्लेस कर दिया है कि मेरा मेकअप होता है तो मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ. So I'm looking to do challenging roles, but they are very far in between, you know. ये तो तकदीर की बात है, कभी कोई ऐसी कहानी हो, कभी ऐसा कोई किरदार आ जाए, उसी के लिए मैं बैठता हूँ, सुनता हूँ क्या क्या कहानियाँ हैं. And with all your, I mean, you can just see the number of fans you have here in Jaipur and the many around India and the world. Do you feel that your fans that understand you? Do you feel that you can communicate with your fans? Of course. हमारे बीच में क्या कम्युनिकेशन नहीं है क्या? ये तो इनका प्यार है, हमारा प्यार ये ऐसी बंधन में, टूट बंधन में. क्या होता है कि आप तो हमें पर्दे पे देख लेते हैं, लेकिन ऐसे मौके हमको कब मिलते हैं कि जब हम यहाँ बैठ के आपको देंगे. And I think your Twitter has played a great deal of a role in this. Tell us about how you got hooked on Twitter. यहाँ कोई मेरे फॉलोअर्स हैं ट्विटर के?
ऐसा है कि ये अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबल है वो चीज़, कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं मैं समझता हूँ कि बोलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मुझे कष्टपूर्वक भी होता है कभी कभी कि बहुत लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन मैं कहे बिना चैन नहीं आता मुझे। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे जैसे लोग और भी हो जो सही कहे, ऑनेस्टली कहे और बिना बिना डर के कहे, तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारे बीच में जो लोग हैं, उनमें आई थिंक कुछ तो कुछ फर्क आएगा। मैं कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मेरा कोई एजेंडा है पॉलिटिशियन का, मेरे को कभी कोई पॉलिटिशियन बनना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ एक्टिंग करता हुआ। तो अगर आप करते हो तो भूल चूक माफ कर देना, कभी कभी गलत बातें हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी बातें भी होती हैं। Are we going to take any questions from the audience? I do hope so. You'd like to take a few questions? Sure, why from not? the audience? Well, how we go? Is there any person giving a microphone? Oh, we can't actually. आप जोर से बोलिए, पूछिए। Anyone who can shout, but only when I let you. Please. तो जो आप वो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो, तो मैं ही तो कह रहा हूं। मुझे किसी परिवार से कोई बैर नहीं है, मैं बहुत इज्जत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, कोई मेरा बैर नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ हुई थी कि मुंबई में एक नया पुल बना था, इट्स कॉल्ड बांद्रा कुर्ला बांद्रा वर्ली लिंक रोड, आज से कुछ 6-7 साल पहले। और मैंने वो देखा था, उस पुल का नाम श्री राजीव गांधी साहब के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नाम पे था। तो मैंने सोचा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मृत्यु तो हो गए 10, 12, 15 साल, तो अभी भी ये नेशनल एसेट्स उनके नाम पे हो रहे हैं। तो मैंने सिर्फ ये एक जागृति पैदा करनी थी कि क्या हम अपने मुल्क में एक ही परिवार के सब जितने इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनके ही नाम पे करनी चाहिए। क्या जरूरी नहीं कि जिस शहर में और भी तो कोई एमिनेंट सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे, जिन्होंने अपनी शहर का बड़ा बढ़ावा किया, उनका नाम किया, उनके नाम पे भी तो होने चाहिए। हर शहर में उनके ही परिवार के, कभी कोई अस्पताल है तो कभी सोचना कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है। दिल्ली शहर में 64 ऐसे हैं, उनके नाम पे क्या 64 होने की जरूरत है? तो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन इस बात पे था। अब मुंबई का जो पुल है वो होना चाहिए था जे.आर.डी. टाटा के नाम पे। जे.आर.डी. टाटा का क्या कंट्रीब्यूशन इस देश में? मैंने बोला कि लता मंगेशकर के नाम पे होना चाहिए ये पुल, क्या कंट्रीब्यूशन उनका भी? ऐसे तो इतने एमिनेंट सिटीजंस हैं हमारे देश में, उनके नाम पे करो ना। सब अपने जो पॉलिटिकल पार्टी आती है अपने पॉलिटिशियन के नाम पे चालू हो जाता है। तो मुझे इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये चेंज कर देना चाहिए कि आप अपने नाम पे कोई संस्था, कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती, कोई योजना नहीं हो सकती, कोई ऐसे एमिनेंट एसेट्स नहीं हो सकते। यही बात तो मैंने आपके सामने रोशनी लाने की कोशिश की। As you launch your book today, I want to ask that was there a need or urge to write your story by your own selves, or was this just an idea tossed by someone else? My dear darling, you're not being paying attention to me. I've been talking this, right? My first question was this, कि बहुत जरूरी था मुझे अपने जर्नी के बारे में बताना। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे बीच में कि एक्टर का बेटा एक्टर ही होगा। ऐसे बहुत से एक्टर के बेटे हैं जो एक्टर नहीं बन पाए, ऐसे बहुत एक्टर की बेटियां भी हैं जो नहीं बन पाई। आज मैं आपके सामने 44 साल से इसलिए नहीं हूं कि मैं राज कपूर का बेटा हूं, वो इसलिए हूं क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने अपने आप को सामने दिया आपके सामने। आज आपके सामने अगर रणबीर है तो रणबीर इस कातिल नहीं है कि वो ऋषि कपूर का बेटा है, वो भी मेहनत करता है और आपके सामने अच्छे मनोरंजन लेके आता है। तो
यहाँ जो है ना वो कहते हैं कि पिता पुत्र का कोई जब पुत्र हो तो यहाँ तो उसने एक्टर बनना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे ये किताब लिखनी जरूरी थी बिकॉज आई एम वन ऑफ द फर्स्ट स्टार सन्स हु हैड इट वेरी इजी मेकिंग द फर्स्ट फिल्म। पहली फिल्म तक ठीक है, फिर उसके बाद क्या भाई, उसके बाद तो जर्नी तो आपकी, आपने ही चलना है, आपके साथ थोड़ी आपके माँ बाप चलेंगे। तो ये बात आपके सामने इस किताब के जरिए जो मैंने कही है बहुत जरूरी है। I remember asking Shah Rukh Khan in 1997 who he thought was the best actor in Hindi films, and he said Rishi Kapoor. And I said Rishi Kapoor in 1997. He said most underrated. And what a comeback we've had. Could we take one last question? Could we take one from here? Hi, I'm Komal, and my question for you is about your book. I was just curious if anything that you've written in the book caused any sort of heat in your family when you were writing it. No, I don't think. I have done everything very honestly. I have not written the book. मैंने किताब किसी डर से नहीं लिखी है, किसी के डर से नहीं लिखी है। मैंने अपनी खामियां पे बहुत तवज्जो दिया है, मेरी कमजोरियों पे, मेरी गलतियों पे मैंने हर चीज खुलासा किया अपने बारे में। आप इस बात का आपको तब एहसास होगा जब आप पढ़ेंगी। मैंने अपना बड़प्पन नहीं किया, मैंने कोई नहीं कहा कि मैंने ये तीर मारा या वो किया। मैंने हर चीज वो कही है जो कि मैं छुपा सकता था, लेकिन मैंने छुपाई नहीं। आपके सामने हर चीज मैंने साबित करके रखी है।